Sir, I thank you for giving the opportunity, sir. Sir, on behalf of my party, I stand to oppose this legislation because the justification being given for being the legislation is to ensure that more women get elected in the parliament and the state assemblies. If that is the justification, why is that justification not being extended to the OBC women and to the Muslim women, sir? Where the representation in this August House is minimal, very less. Secondly, sir, we know that Muslim women are 7% of the population, but in this Lok Sabha, their representation only 0.7%. We know for a fact that the annual dropout rate of Muslim girls is almost 19%, while it is 12% for other women. Sir, nearly half of the Muslim women are illiterate. This Modi government wants increased representation for Savarna women. They don't want representation for OBC women and for Muslim women, sir. 690 women MPs have been elected till the 17th Lok Sabha, and out of this 690, only 25 have come from the Muslim community. In 57, 62, 91, 99, there has been no Muslim woman got elected. May I tell you, sir, and bring to notice of the August House, that this number has never gone beyond four members. And when I hear that no reservation cannot be given on religious grounds, what is 1950 presidential order? It is a deceive. You are deceiving the Muslim community by denying them this quota in this women reservation, sir. Muslim women face double bind discrimination against being as a woman and as a Muslim also, sir. This government does not want to live in a world where marginalized people get substantial representation. You want a parliament which consists of only bade log. You don't want people from Chote Log to enter in this August House, sir. This bill will deny fair share to OBCs. This bill will close the doors for the Muslim representation in the parliament and in the assembly, sir. We know for a fact, sir, with the rise of Hindu majoritarian nationalism and the formation of Hindu vote bank by BJP, the Muslim representation has gone down. It will go down further. Is this good for our country, the political isolation of Muslims? बचपन में जब हम लोग अपने फादर के साथ, भाई कहते थे हम लोग अपने फादर को, जब उनके साथ जाते थे एक गांव में, अपने गांव से थोड़ा दूर था वो, होली पे मेला लगता था, फूल का मेला, वो मेला देखने के लिए। तो वो करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था गाँव। छोटे छोटे थे हम लोग, उनके साथ चलते थे, उनका हाथ पकड़ के, और जब थक जाते थे तो पूछता था कि भाई अभी कितनी दूर और रह गया है। तो कहते थे बस बहुत थोड़ी सी दूर है, और फिर चलने लगते थे हम लोग, और थोड़ी थोड़ी दूर कर करके मालूम हुआ कई किलोमीटर का सफ़र हो जाता था, और तब जा कर के वहाँ गांव तक पहुँचना होता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी एक बिल लेकर के आई, स्पेशल सेशन उसने बुलाया पार्लियामेंट का 5 दिन का, और ये उसमें उसने एक जो नई संसद बनी है, सेंट्रल विस्टा उसका नाम है। चूँकि अभी बात हो रही थी इंडिया की, तो इंडिया से उनको प्रॉब्लम है, इंग्लिश से नहीं है। सेंट्रल विस्टा नाम से नई संसद बनी है, उसमें ये सेशन शुरू हुआ। और पहली बात तो ये कि इस नई संसद में जो सांसदों को संविधान की कॉपी दी गई, उस कॉपी में की जो प्रस्तावना है उसमें से सेकुलर और एक शब्द और सोशलिस्ट, वो दोनों नहीं थे। जब सांसदों ने इस बात की शिकायत की तो सरकार की तरफ से बताया गया कि हमने आपको मूल कॉपी, वो कॉपी जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सभा ने बना करके तैयार करके भारत की सरकार को, भारत की संसद को पहली बार सौंपी थी, वो कॉपी हमने दी है। अब यहाँ पर ये सब देखें, समझना पड़ेगा। फिर हम वही बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। सिमिलरिटीज़ होती हैं ज्योमेट्री में, तो सिमिलरिटीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आपने पहला वाला संविधान क्यों दिया? क्योंकि जो अमेंडमेंट होने के बाद आज की डेट में जो संविधान है वो वैलिड है। पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किए हैं जो भी हुए अब तक, तो वो मान्य है और संविधान के अनुरूप है।
तो आज की डेट में जो संविधान है वही संविधान ओरिजिनल है। आपको आज का संविधान देना चाहिए था, क्योंकि आपको सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों शब्द हटाने हैं। इसलिए आपने मूल संविधान की कॉपी दे करके संदेश दे दिया कि हम ये शब्द दोनों हटाएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे इशू की, वो है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण का बिल लाया गया। पहले तो सेशन किस बात के लिए बुलाया गया किसी को बताया ही नहीं गया था, और इस पर जो विपक्षी पार्टियां थी वो पूछती नहीं सरकार से, सरकार की तरफ से नहीं बताया गया कि हम ये बिल क्यों लेकर के आ रहे हैं। बाद में वो ये महिला आरक्षण का बिल लेकर के आए। अब चूँकि कोई भी पार्टी इस पर विरोध नहीं कर सकती वीमेन रिजर्वेशन पर, सरकार को भी ये मालूम है कि जो भी पार्टी इसका विरोध करेगी वो जनता में एक्सपोज हो जाएगी और जो फीमेल वोट है वो इससे खफा हो जाएगा। तो सारे विपक्ष ने एक मत होकर के सरकार के साथ में बिना शर्त समर्थन इस पर दिया। सिर्फ 2 सांसद, वो AIMIM के 2 सांसद, एक वो जलील और दूसरे असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन 2 लोगों ने इसका विरोध किया और पूरी संसद ने पक्ष में वोट डाले। केवल 2 वोट जो थे वो विपक्ष में गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस थे उस पर। इसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी सेक्शन की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, और पूरे डाटा के साथ, क्योंकि वैसे ही बहुत काबिल पढ़े लिखे इंसान हैं और जब भी बात करते हैं उनकी बात में बहुत ज़्यादा गहराई और वजन होता है, वो हल्की फुल्की बात नहीं करते हैं, चीज़ों के बहुत जानकार हैं। अब वो समझ रहे हैं चीज़ें क्या चल रही हैं। आप SC, ST, OBC को भी नहीं देना चाहते हैं, माइनॉरिटीज़ को भी नहीं देना चाहते हैं। भारत में एक बड़ा वर्ग है माइनॉरिटीज़ का, उसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं है, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, यहूदीज हैं। तो एक बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे मज़हब हैं, वो माइनॉरिटी है। RSS को प्रॉब्लम है 2 वर्गों से हिंदुस्तान में। नंबर 1 पर है सिख समाज और नंबर 2 पर है मुसलमान। मुसलमान चूँकि उसका कोई आगे पीछे कोई किसी तरह का है नहीं, तो उन्हें किसी से पकड़ लो, दबोच लो, कूट लो, पीट लो, मार लो, कुछ भी कर लो, वो सहते रहेंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ये देवबंद वाले जो मौलवी साहब लोग वगैरह हैं, महमूद मदनी, अरशद मदनी जैसे, वो जिनेवा में जा कर के भी कह देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भारत में मुसलमान बहुत कुछ है। और सऊदी अरब जाते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे पे जाते हैं, गवर्नमेंट भेजती है उनको, दे आर एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड RSS। ये वहाँ जाते हैं और जाकर के सऊदी अरब में और UAE में और दूसरे जो अरब के देश हैं वहाँ जाकर के भी कहते हैं कि भारत का जो मुसलमान है बहुत कुछ है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा आज़ादी भारत में मिली हुई है और दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भारत है। तो ये चमचे जो कहलाते हैं ये वो लोग हैं, इनका कोई आधार पेंदा नहीं है, इनको चाहिए अपना फ़ायदा, विदेशों से मिलने वाला रकम और जो सरकार से सहूलतें मिलती हैं वो पर छोड़ें। अब आते हैं असल इशू पर। सरकार को न तो महिलाओं से कोई मतलब है, न रिजर्वेशन से कोई ताल्लुक है, लेकिन रिजर्वेशन लाया क्यों गया? एक तो टॉपिक चेंज करने से जो देश में चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन जैसे बना है उसकी तरफ से जो इश्यूज़ उठाए जा रहे हैं, मणिपुर का मामला, ये हरियाणा का अभी जो दंगा है, इन तमाम इश्यूज़ को, महंगाई को, बेरोज़गारी को, सबको पीछे डालने के लिए। दूसरे, हरारत देखी जाती है, टेम्परेचर कितना है, बुखार किसी को आ जाए तो थर्मोमीटर बगल में या मुंह में लगाते हैं और उसमें थर्मोमीटर को चेक करते हैं कि इसमें कितना व्यक्ति को फीवर है, उसी तरीके की फिर दवा दे करके उसका इलाज किया जाता है। इस तरह के जो ये विमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया है, ये बुखार नापने का तरीका है।
कि जब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये सारे लोग मिलकर के SC, ST, OBC एंड अदर्स किस लेवल का प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किस लेवल का विरोध करेंगे। 2024 में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना है। बहुत संभव है नया संविधान लागू हो, नई संसद बन चुकी है, उसमें संगोल डंडा कमर सीधी करने के लिए वो पहले से स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर चुके हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पहली बार उनको RSS ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। दूसरी बार वो अपनी परफॉर्मेंस पर या जैसे भी थे वो बने थे। तीसरी बार किसी ने नहीं किया, उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँ। जो दूसरे और लीडर्स हैं बीजेपी में, वो कोई फिलहाल उम्मीद न रखे, अभी मैं हूँ। उधर यानी प्रधानमंत्री सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, हुकूमत से नहीं जाना चाहते हैं किसी भी सूरत में। उधर RSS एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा देगी अगर 2024 में चुनाव होते हैं तो। कंडीशनल है, हमने अपने और भी वीडियोज़ में बोला, अगर आई एम नॉट श्योर कि चुनाव होंगे 2024 में, सरकार को वक्त चाहिए तो वो चुनाव टाले जा सकते हैं आगे के लिए। उसके लिए रास्ते निकलेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। अब अगर चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन सब मिल जाए, बावजूद इसके लगता नहीं है कि वो चुनाव जीत पाएंगे। RSS को हर हाल में का मतलब समझते हैं आप, साम दाम दंड भेद और वो संगोल कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े, उनको सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना है। अब नहीं जाने देना है तो कुछ होगा देश में, विपक्षी पार्टियां करेंगी, विपक्षी गठबंधन करेंगे, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज ये बोलेंगे, तो कैसे निपटा जाएगा उनसे, और किस हद तक का वो विरोध कर सकते हैं। ये उस महिला रिजर्वेशन से, ये जो महिला रिजर्वेशन लाया गया है उससे उसको मापने की कोशिश है। कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका महिलाओं से, न महिलाओं के फ़ायदे के लिए ये लाया गया है, न ये लागू होना है अभी। जैसा मायावती जी का एक बयान है, उन्होंने कहा कि अगले 15-16 साल तक तो इसमें कुछ होना ही नहीं है। वैसे भी जो जानकार हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बता रहे हैं कि 2030 तक जा कर के कुछ लागू हो पाएगा। अभी दोनों सदन से पास होने के बाद, कानून बन जाने के बाद भी फिर जनगणना होगी, फिर परसिमन होगा, फिर न जाने क्या क्या होगा, फिर डिलिमिटाइजेशन होगा, फिर तब जा कर के ये फिर लागू होने का नंबर आएगा। तो बहुत वक्त लगेगा। यानी आज 2023 से भी कोई अगर मान के चलें तो 2030 साल के बाद ये लागू होगा। तो अभी इसको लाने की क्या ज़रूरत थी? वो ये ज़रूरत थी कि इनको मेजरमेंट करनी है लोगों की। 2024 में सरकार, मौजूदा सरकार के जो लीडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते और नहीं छोड़ेंगे। अब बाकी विपक्ष क्या करेगा? देखें, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं। एक बार भारत में इमरजेंसी लग चुकी है, आगे चल के बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया जा सकता है। राहुल गांधी हैं, उनके और एक आदेश जारी हो कि तो उनके जो गार्ड्स हैं वही उनको नज़रबंद करके बैठे होंगे, नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर। अखिलेश यादव, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो उनके बॉडीगार्ड्स जो उनकी सुरक्षा में हैं, वही उनको वहीं बिठा करके बैठे होंगे कि आप नहीं जा पाएंगे। कश्मीर में 370 को हटाया गया था, सारे लीडर्स कैद कर दिए गए थे और फिर गिरफ्तार करके जेलों में भेज दिए गए थे। सैकड़ों लोग गिरफ्तार करके, कोई आगरा की जेल में, कोई बरेली की जेल में, कोई कहीं अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये सब तैयारियां चल रही हैं फ्यूचर की। कह नहीं सकते देश का जो पॉलिटिक्स है भविष्य में वो किस तरफ जाएगी, क्या होगा, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आप मान के चलें, ये महिला रिजर्वेशन एक बस
धोखा है और इसमें कुछ भी नहीं है। आपने संविधान में से सेकुलर सोशलिस्ट शब्द हटा ही दिया, चर्चा भी नहीं हो रही उसकी। महिला रिजर्वेशन केस है, उसमें कोई छोटी घटना नहीं है। ये इंटेंशन दिखाता है कि आपको संविधान में से हटाना नहीं है, संविधान को ही हटाना है। आप देखते रहें देश में क्या होता है। एक बड़ा सेक्शन माइनॉरिटी का जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका खात्मा हो चुका है एक तरह से। तो सियासत में सिफर हो गई है, कारोबार में ख़त्म है, रोज़गार है नहीं, मुलाजमत है नहीं, उसके बाद नौकरियाँ। आज मुस्लिम क्या पूरे कंट्री की अगर एक सर्वे कराया जाए 2-3 हज़ार रुपये किसी के घर में नकद नहीं निकलेंगे 70-80% लोगों के। जहाँ महिलाएं अपने पास बचा करके पहले हज़ारों हज़ार लाखों रुपए जमा करके रखती थी, आज वो महिलाओं के पास आपको पैसा नहीं मिलेगा। जो बंदोबस्त एक बार बन जाता है उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। ब्रिटिशर्स ने भारत पे 250 साल हुकूमत की, पूरा सिस्टम उनके अपने हाथ में था। ब्रिटिशर्स कितने थे भारत में? 18,000, 20,000, 35,000, 42,000 इस तादाद में हुआ करते थे। भारत की आबादी कितनी थी? 30 करोड़। 30 करोड़ पर 20-25-30 हज़ार लोग राज करते थे। फूंक मारते थे वो सबके सब हिंद महासागर में जाके गिरते। लेकिन सिस्टम बन गया था उनका। सिस्टम को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं, सदियों लगते हैं, दशकों नहीं सदियों। जो सिस्टम बनता जा रहा है वो कब ब्रेक होगा नहीं मालूम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। शुक्रिया ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लास बाय क्लास बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद तो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक। उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है। इसीलिए मैं इसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो ठीक करना चाहिए। Iron Lady Indira Gandhi ji, the then Prime Minister of India, in the 1962 war, when the country is in a difficult period, she donated entire her jewelry to the National Defence Fund. Prime Minister Indira Gandhi. We are proud, sir. We had a leader like Indira Gandhi ji. Yes, she is talking about they are talking about women empowerment. Who is the first Prime Minister of women Prime Minister? Who given the first woman Prime Minister? Who given the first woman President of India? Who is given first Lok Sabha Speaker of the India?
Who is given the first governor of India? Who is given the first party president of India? Everything is Congress, sir. Then they are trying to become the champions of these things. No, I'm not yielding. Sir, if you are going to do the census, well, Nadda ji is talking about big, बहुत ज़्यादा बोल दिया OBC के लिए. Then why you are running away from caste census? Why you are running away from caste census? If you have a OBC pram, do the caste census and show the country. Why you are running from the caste census? You are talking. Yes, we are proudly saying out of our 4 chief ministers, 3 are from OBC community. Out of our 4 chief ministers, you are talking about Congress is. That's what then you have to understand. Sir, then these people are talking about women empowerment. My old fellow parliamentarians spoke about that. Unnao, Katwa, Manipur, sir, Hathras. Sir, I am also pained when I saw the video of women paraded naked in Manipur. When with Rahul Gandhi ji, the women folk of Manipur crying before us. Our Prime Minister not even uttered a single word in 100 days. Then you are talking about women empowerment. What women empowerment? What women empowerment? Yes, everywhere, wherever. Yes, there is no discrimination. I'm telling very clearly, sir. One thing, they are talking about women empowerment. Beti Bachao, Beti Padao. Government only utilized 156 crores out of the budget, 848 crores. Shockingly, 80% of the fund allocated were spent on publicity for Beti Bachao and Beti Padao. In 2023, the budget for Mission Shakti declined by 1.2%, which include your Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Women Helpline, Beti Bachao, Beti Padao, other schemes. 36. You speak about the women's safety, but why 30% Nirbhaya fund is unutilized? You speaking about the women's security, why Nirbhaya fund is unutilized 30%? Give us an answer. Sir, now the price of women, now the women are crying, sir. LPG gas, 1,000 rupees. Tomato, and their price rise everywhere. People are fighting. Sir, I am concluding. 1 minute only, sir. 1 minute only, sir. Derek O'Brien. Sir, 1 minute. Sir, my point is that women are in a very great difficult situation in this country due to price rise. You are talking about empowerment of women. What is the LPG gas price? 1,000 rupees. 1,200. Petrol diesel price is hiking. Tomato price is hiking. Everywhere difficulty they are facing. On the other hand, their security is totally compromised. Therefore, on the other hand, they are telling at the end of the election period, they are bringing with legislation and they are telling that this is not going to happen. देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफ़ी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और इस संशोधन
विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा। और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे और ये मानसिकता जो है इनके महिला आरक्षण बिल में जो है छलकता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए सब लोग जो है इस बात को तो उठा ही रहा है। और आखिर क्या वजह है कि भाई इसमें महिलाओं, अति पिछड़ा हो या पिछड़ा या माइनॉरिटी महिलाओं को इन्होंने आरक्षण नहीं दिया? तो जाहिर सी बात ये नहीं चाहते कि उस वंचित शोषित समाज की महिला भी यहाँ आए, पार्लियामेंट आए। लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर है देश का, लोकतंत्र का, वहां ही पहुंचे, अपनी बात रखे, अपने समाज की बात रखे, ताकि उनके समाज का कल्याण हो सके। तो ये तो पूरी तरीके से छलने का काम कर रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं इस बात को कि ओबीसी वर्ग जो है लड़ाकू वर्ग है। अगर इनके 60% हक को ये छीनेंगे तो ईंट से ईंट ओबीसी बजा देगा। And when I hear that no reservation cannot be given on religious grounds, what is 1950 presidential order? It is a deceive. You are deceiving the Muslim community by denying them this quota in this women reservation, sir.